شاعری کی سلیکشن میری کچھ ایسی رہی ہے شروع سے، جس میں غم کا اثر نمایاں ہے. اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ میں جتنے لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اسی ٹائپ کا لکھا، ان کو بھی ایسی اس میں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. یہ ہر ذات کا مسئلہ ہے، جو سمجھ لیں. ہمارے بزرگ تھے بہت عظیم شاعر بھی اور نثر نگار بھی، ابن انشا. اور انشا جی سے ایک بزرگ کی حیثیت سے ہم ان سے ملتے تھے. تو جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نثر میں صرف مزاح لکھتے تھے اور بہت بڑے مزاح نگار تھے اردو کے. لیکن جب شاعری کی جانب آتے تھے تو کل 14ویں کی رات تھی اور شب بھر رہا چرچا تیرا، اور انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. اور ہمیشہ ایک غمگین اور بہت ہی اداس لہجہ تھا ان کا. اور اس اداس لہجے کی سب سے زیادہ اداس ایک نظم جو مجھے بہت پسند تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایسی نظم ہے کہ یہ کسی گائک کی گرفت میں نہیں آ سکتی. اس میں ایک ایسا الگ پہلو تھا جو عام گائک تھا کہ آپ شاعر بھی رہے. یہ باتیں ہیں تب کی جب آتش جواں تھا. اچھا، آتش اب بھی خاصا نارمل لگتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اب تو خرچہ کر کے ایسا ہوتا ہے. اچھا، شاعری جو آپ نے کی تو کسی خاص شاعر سے آپ متاثر ہوئے؟ ایسا ہوتا ہے مستنصر بھائی کہ میں چونکہ فوک گاتا ہوں تو فوک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ اس کے اشعار نہیں ملتے تھے، یعنی ایک استائی یا بمشکل اس کے 2 انترے مل گئے، تو اس پہ پھر ہم خود حرزہ سرائی کرتے ہیں. مطلب کوئی حرزہ سرائی کر کے سنائے نا. یعنی ایک یہ گیت ہے، وہ ہمارے میاں والے کے ہیں شاعر، انہوں نے لکھا، لیکن تھوڑے سے اس میں شعر تھے. اس میں نے ایک شعر کا اضافہ کیا، قمیض تیری کالی سونے پھولاں والی. شاعر کون کون سے؟ احمد فراز صاحب مجھے پسند ہیں، ساحل لدھیانوی صاحب، ان کا کلام میں نے کبھی کبھی گایا ہے. احمد فراز کی کوئی غزل آپ نے گائی ہو؟ اگر آدمی سفر کرے اور چترال تک جائے یا پشاور تک جائے تو مختلف منظر جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں، زبانیں بدلتی جاتی ہیں، لیکن ایک آواز جو ہے مسلسل آپ کے کانوں میں گونجتی ہے، چائے خانوں میں سے، ٹرکوں میں سے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں سے، اور وہ ہے عطا اللہ عیسیٰ کیندی کی آواز. آپ کے پاس ایک کاپی ہے جس سے دیکھ کر آپ گلوکاری فرماتے ہیں، اس میں غزلیں بھی ہیں، گیت بھی ہیں، کافیاں بھی ہیں. تو میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی لکھائی بہت اچھی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بات یوں ہے کہ ہم جو دیہاتی لوگ، پینڈو لوگ ہیں جی، تو ہماری سب سے اس وقت کی بات، اب تو پتہ نہیں دیہاتوں میں جانے کا بھی کم اتفاق. کہ آپ جو میل ہیروز ہیں ان کے نام سے تو رکھ سکتے ہیں اپنے بیٹوں کا نام، لیکن بیٹیوں کا نام آپ سسی یا ہیر نہیں رکھتے. یورپ میں جولیٹ عام نام ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی، لیکن یہاں ہم محسوس کرتے ہیں نا. تو سامل ماشاءاللہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑے انہماک سے اور غور سے گانا سن رہا ہے. آپ نے اسے کہا ہوگا کہ بیٹے آپ نے بہت غور سے میرا گانا سنا. تو سامل سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں اگر آپ اجازت دیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا سامل بیٹے، آپ کو ابو کو گانا وغیرہ سکھاتے؟ نہیں جی، مجھے کوئی گانا نہیں سکھاتے. کبھی کبھی تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں. کیا بتاتے؟ کوئی شعر اگر میں بھول جاؤں کہیں سے، اچھا، میں ریہرسل اپنی کرتا ہوں، تو کہیں سے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے تھوڑا سا میں پوچھ لیتا ہوں ان سے، تو مجھے بتا دیتے ہیں. اچھا، ابو کی کوئی خاص عادت جو آپ کو، بلکہ 2-3 عادتیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں؟ مجھے تو ابو اچھے لگتے ہیں، تو ان کی مجھے ہر عادتیں اچھی لگتی ہیں. بیٹے یہ گھر جا کے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا اور نہ انہوں نے مجھے کبھی جھڑکا ہے. سیکھی یہ آپس میں لازم و ملزوم. جب آپ گاتے ہیں تو آپ کی خاص وہ جو ردم ہے طبلے کی بھی ڈھولکی کی بھی، تو اس میں میرے جیسا شخص بھی جو موسیقی کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے تو اس کے اندر بدن میں، خون میں، گردش میں کوئی حرکت ہوتی ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ رقص کیا جائے. تو آپ جب گا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو وہ تمام تر حرکت آپ کے اندر وہ سفر کر رہی ہوتی، تو آپ کا جی نہیں یہ چاہتا کہ یہ جو آرام سے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں منہ بنا کے یا ذرا سا سر ہلا دیتے ہیں تو یہ اٹھیں اور اس پر رقص کریں.
जी चाहता है, लेकिन मुस्तनसर भाई हमारा माशरा हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता. हमारा माहौल, हमारी जो तहजीब हम है. माशरे की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जी की बात कर रहे नहीं, मेरा जी तो करता है, मैं अगर आप गाते हुए ज़रा गौर करें तो मैं खुद उस वक्त जी। मेरा जिस्म नाच रहा होता है हैं। उस रिदम, उस लय में. और जो सामने बैठे हुए लोग बाज़ औक़ात जब हमारी उनसे वो होती है देखने की हद तक, तो उनका पाँव चल रहा होता है या हाथ चल रहा होता है, हम उसी पे इक्तिफ़ा करते हैं और ये समझते हैं कि ये नाच रहे हैं. अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो गए हैं आप, तो बाहर वहाँ के तो मुल्कों में तो ऐसा होता है कि जब आदमी अपने आप पे इख्तियार नहीं रख सकता तो उसको कोई पाबंदी नहीं होती नाचने की, नाचता भी है. ऐसा हुआ? हाँ, कई दफ़ा हो. तो वहाँ वो नाचने को बुरा नहीं समझते, उनकी बीवियाँ, उनकी फैमिलीज अच्छा, उसके क्लबों. रक्स से आपको कुछ असर होता है? आप ज़्यादा तेज़ गाते हैं या आप में ज़ाहिर है जब रिस्पांस मिलेगा तो आदमी खुल के परफॉर्मेंस देगा, बेहतर तरीके से कोशिश करेगा परफॉर्म करने की. कभी ये भी हुआ कि आपने अपना बाजा छोड़ा और खुद शुरू हो गए? हाँ हुआ जी, कई दफ़ा हुआ. अच्छा, मसलन कौन से गाने पे हो? ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ गाने बाज़ औक़ात चलते हैं. अब माहौल पे डिपेंड करता है. मसलन जो आज का माहौल है वो कल नहीं था. कल जिनके जो मेरे सामने ऑडियंस थी उसमें 90% लोग अनपढ़ थे और मजदूर थे. जी। और आज की जो ऑडियंस है उसमें मुझे तो कोई मजदूर नहीं लग रहा, कोई अनपढ़ नहीं लग रहा. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस ऑडियंस से दूर हो गए और आप पढ़े लिखों में आ गए नहीं, ये बात नहीं है. उनको छोड़ के? ना ना, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब कल रात को मैंने जो फंक्शन किया उसमें ऐसी ऑडियंस थी जिसमें ज़्यादा अनपढ़ थे, मजदूर तबका लोग. और आज अल्लाह के फजल से मैं जिस ऑडियंस में बैठा हूँ वो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे उससे बिलोंग करती है. जी। तो पता दोनों किस्म की ऑडियंस से वास्ता बढ़ता है. जी। जो लेकिन ज़्यादा जो मेरा है स्टेज का काम देहातों में या छोटे छोटे शहरों में, तो वहाँ जो मजदूर तबका लोग हैं ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं. अच्छा, एक जो हमारा एक सकाफती एक हवाला है मेलों ठेलों का, और एक ज़माने में बहुत हमारे मशहूर जो लोक फनकार थे वो वहाँ जाते थे और गाते थे और दाद पाते थे, तो आप भी इन मेलों ठेलों में जाते हैं? हाँ जी, मैं भी जाता हूँ उन मेलों में, या उर्स पे भी जाया करते हैं. जी। ये जो हमारे फनकार लोग हैं उर्सों पे भी जाते हैं. जी हाँ। मैं सिर्फ जाता हूँ अपने वहाँ पीरो मुर्शिद के यहाँ, जी हाँ। जब उनके बुजुर्गों का उर्स होता है वहाँ तौसा शरीफ में. नहीं, इसके अलावा जो मेले वैसे होते हाँ, मेले उन पे भी जाता हूँ. हैं, मसलन कौन से मेले, कोई नाम लें आप? अब छोटे छोटे देहातों में मेले होते हैं, या हमारे मुल्क में जो मार्च के महीने में जो मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नमेंट मेले करवाती है, अच्छा, उन मेलों में मैं जाता हूँ. और वहाँ की ऑडियंस की में और इस्लामाबाद की ऑडियंस में क्या फ़र्क होता वहाँ की ऑडियंस में कोई बनावट नहीं होती, कोई तकल्लुफ नहीं होता. अब यहाँ की ऑडियंस को जितना भी गाना को पसंद आ जाए वो ऐसे ही कर दें और इसी पे वो समझेंगे कि हमने कोई आर्टिस्ट पे बड़ा एहसान बहुत कर आसान दिया. किया। लेकिन वो जो है वहाँ का किसी सरगोदे या किसी वहाँ मुल्तान के इलाके में जब मैं गा रहा होता हूँ, एक आदमी को ज़्यादा वो अपील करता है, ज़्यादा पसंद आता है, तो वो उठ के बेखुद नाचना शुरू हो जाता. और उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, कोई बनावट नहीं होता कि कोई मुझे देख रहा है या कोई एटिकेट्स के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ. इत्तेफाक से उस वक्त मेरा कैसेट मेरे ही रिकॉर्ड प्लेयर में चल रहा है, तो मेरे पीछे बैठे हुए वन स्पीकर को यूं लगा जैसे कोई करंट लगा हो. उसने कहा, यार खुदा के लिए इस आदमी की आवाज़ को बंद कर. न इसे गाने का पता है, न इसे आदाब आते हैं गाने के, इतना उर्दू की टांगें तोड़ देता है, उर्दू बोलनी नहीं आती इसे, मौसीकी की इसे अलिफ बे का पता नहीं लोग इसे क्यों सुनते. खैर मैंने वो रिकॉर्ड प्लेयर ऑफ कर दिया. मैंने अर्ज़ किया कि आप कौन सा कैसेट पसंद करें. उन्होंने कहा कुछ और लगा दो, इसको ना लगा. मैंने कहा ठीक. वो कैसेट लगा दिया हमने कोई और गानों का. सो हम चल पड़े. जेल हम पहुंचे तो उस वक्त वो हजरत गोया हुए कि देखें हम सुबह से वहाँ हमारी हाज़िरी थी किसी केस के सिलसिले में फैसलाबाद में, तो हम सुबह से गए, कुछ खा पी नहीं सके. आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकें, आप भी चाय पी लें, हम भी कुछ खा पी लेंगे. उन्होंने जेलम से आगे छोटा सा स्टॉप था, वहाँ उतरना था, दीना के पास. तो
मुस्तनसर भाई हम जाके बैठ गए, वो जाके बैठे और मैंने इस दौरान बीवी से पूछा आपने कुछ खाना पीना, उसने कहा नहीं। तो जब वहाँ मैं पहुंचा तो इत्तेफाक से वो जिस टेबल पे बैठे थे उसके ऊपर लाइट लगी हुई। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया, वो दोनों हजरात मुझे देख रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। और वो आखिर में उससे रहा ना गया, मुझसे पूछा जी आपको कहीं देखा है हमने? मैंने कहा हो सकता है कहीं देखा हो, आप गौर कीजिए, ज़रा जहन पे जोर दीजिए, कहाँ देखा है? काफ़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगा जी आप अताउल्लाह ईसा खेलवी तो नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल वही है। कहने लगा जी वाह वाह आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है मैं जितना अच्छा गाता हूं। तो इस तरह भी होता है कभी कभी। नहीं तो कोई दुख हुआ उनकी बदतारीफी से? नहीं, बल्कि कभी कभी अच्छा लगता है कि इतनी जो तारीफ हो रही है, नहीं उनका उसके जायका अलावा बदलने भी के लिए। मैं ये इस बात को अच्छा नहीं समझता। अच्छा। एक आदमी ठीक है मुझे पसंद नहीं करता, मैं जबरदस्ती उसके जहन में तो नहीं घुस सकता। अब जो आदमी मुझे नहीं पसंद करता, जी। कई ऐसे भी गाने वाले हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता, हालांकि वो बहुत अच्छा गाता है। मैं सफर करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, वरना शायद आज मैं कहीं मुलाजिम होता तो हो सकता है जितनी बड़ी भी मुलाजमत होती ये मकाम ना हो, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे वहाँ एडजस्ट हो जाता उसमें मुलाजमत में कि ठीक है अब इसी में गुजारा करना है। लेकिन वो न मिलने की वजह से जो सफ़र, जो एहसास से महरूमी, जो मुसलसल मुझे मिलता रहा, टॉर्चर मुझे मिलते रहे अहबाब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, माहौल की तरफ से, तो वही जो सारी चीज़ें हैं वो मिल के मुझे यहाँ ले आई। आप अच्छा इसके अलावा, अच्छा ये जो कंडक्टर का जॉब आपने किया, हाँ, उसके अलावा मैं बता रहा था कि फिर कुछ एक ऐसा भी वक्त आया, मैं यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग के साथ साथ वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखता रहा। अच्छा। मुझे किसी ने कहा कि जब ये तुम्हें आ जाएगी तो तुम्हें आसानी से मुलाजमत मिल जाए। सिफारिश भी नहीं थी, क्योंकि अपने जो फैमिली के मेंबर जो आला ओहदों पे थे वो तो वैसे ही मुझसे नफरत करते, तो उनकी सिफारिश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे कहीं सिफारिश दिला के मुलाजिम कराते। तो अपने तौर पे मैं जो कुछ कर सकता था, तो वो मैंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी सीखने की कोशिश की। वहाँ एक यहाँ कमेटी चौक में एक उस वक्त स्कूल हुआ करता था जहाँ सिखाया जाता, वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद यहाँ कुछ हालात या जी भर गया यहाँ से, तो फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ एक होटल में मैं वेटर। अच्छा, ट्रक ड्राइवरी जो है इसके दौरान कोई दिलचस्प वाकयात? उस वक्त चूंकि एक आम आदमी था मैं, और वाकयात तो बहुत से हुए, कई दफ़ा पुलिस वालों से झगड़ा, कई दफ़ा अंदर, कई दफ़ा बाहर। पुलिस वाले अगर चालान करना चाहते थे तो आपको चाहिए था कि मेरा नाम ले देते कि मेरा नाम ये है, फिर चालान नहीं होता? नहीं, उस वक्त तो ये सवाल ही पैदा नहीं। उस वक्त तो अगर थले आए उस वक्त नाम की कोई बात नहीं। अच्छा था, आप ये फरमाएं कि ये जो बेशुमार ट्रकों वाले और बसों वाले आपके कैस्टें चलाते हैं, तो ये क्या उसी हवाले से कि ये हमारा भाई हुआ करता था? नहीं, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मुस्तनसर भाई के जो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं हमारे मुल्क में, वो सराइकी और सिंधी स्पीकिंग है। हमारे इलाके के कोई बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ट्रकों में ज़्यादा कैसेट चला मेरा। मतलब ये आप वालिद साहब का नाम क्या? अहमद खान न्याजी। और उनका पेशा? जमींदार। बहन भाई आप कितने? हम 4 बहन भाई थे, एक बहन फौत हो गई और हम 3 हैं। बाकी भाई क्या करते? एक भाई है मेरा जो वो भी जमींदार से ही मुंसलिक। अच्छा जी। तो वो आपकी ये चीजें वगैरह सुनते? अब तो